Yes, we are live now. We are live. Yes, sir, we are live, so we'll just start it. Jai Bhim, good evening to all our doctors and our viewers. We wish you all a very happy and prosperous new year. I, Dr. Sonika Bodhi, General Secretary IIDF, along with me, Dr. Anuradha Vele, Executive Member IIDF, welcome you on behalf of IIDF. IIDF, that is Indian Ambedkarite Doctors Federation. It is an organization working globally, building bridges with the similar Ambedkarite forums in other parts of the world. We intend to bring together every Ambedkarite doctor who wants to do something positive for the oppressed society and is willing to contribute towards the cause. We are here to pay tribute to Savitribai Phule, the first female teacher, a true epitome of women empowerment and feminism. As we all know that today is Savitribai Phule's birth anniversary, and we all are here to celebrate it as Teachers' Day. Birth anniversary. Knowledge always demands increase. Savitribai It Phule is like fire. the first women teacher. Carry on. Yeah, knowledge always demands increase. It is like fire, which must first be kindled by some external agent, but will afterwards always propagate itself. With this, let me brief about today's program. It will include a short brief of Savitribai Phule's life journey. Then we will have words from our doctors, doctor fraternity, who are here with us today. Also, we have special guest with us today, IPS Mr. Sandeep Tamgarge sir, and we will have Mr. Bhavar Meghvanshi sir also, who will be joining soon. We will have a tremendous performance by Yalgar Sanskritik Mandal from Mumbai, depicting the life of great heroes. We would like to have few glimpses of the program which we will have today. After that, I will Dr. Anuradha Vele will continue with the life journey of Savitribai Phule. So I request the Yalgar group just present few highlights of the show so that our viewers will come to know that what is going to be happen in this program. साऊ ज्योतीच्या नावानं सांग भय, साऊ ज्योतीच्या नावानं सांग भय. सभी को क्रांतिकारी जय साहू, जय ज्योति, जय भीम, सलाम, जय भीम। आज क्रांति माँ की जयंती है, जन्मदिन है, तो इसी अवसर पर हम सच्चा टीचर डे मनाने जा रहे हैं जी। तो क्रांति माँ की एक कविता है, 19वीं शताब्दी में मानवता के ऊपर सवाल करने वाली ये कविता है, मैं पढ़ता हूँ। ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, उसे अर्जित करने की जिज्ञासा नहीं, बुद्धि होकर भी उस पर जो चले नहीं, उसे इंसान कहेंगे। दे दो ईश्वर काम किए बैठे बिठाए खाट पर, ढोर डगर भी ऐसा कभी करता नहीं, जिसका कोई विचार अस्वार नहीं,
उसे क्या इंसान कहे? पत्नी बेचारी काम करती रहे और पति फोकट में मौज उड़ाए, पशु पंछी में ये बात होती नहीं, ऐसों को इंसान कहेगा? दूसरों की मदद ना करे, सेवा त्याग दया माया ममता आदि जिसके पास ये सद्गुण नहीं, उसे इंसान कहेगा? तो ये बात हमारी क्रांति माँ कहती है। और सबसे बड़ी चीज अज्ञान, इसके खिलाफ 19वीं शताब्दी में क्रांति माँ ने आवाज उठाया, लड़ाई शुरू की, और वो लड़ाई आज भी हम जारी रखते हैं। और क्रांति माँ को नमन करते हुए महाराष्ट्र की एक ओवी गाते हैं। It was so wonderful. Thank you so much, the team. थैंक यू। पूरा प्रोग्राम बाद में हम जब आप बताएंगे तब जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस एक शॉर्ट हाईलाइट ही था। आगे का प्रोग्राम आफ्टर having all the introduction with our members and also few brief about the life story of Savitribai Phule will come to you again. So without any delay, let's start it. I request Dr. Anuradha Bele to please continue. Thank you, Dr. Sonika, and especially the Yalgar group for a wonderful introduction. Like Dr. Sonika rightly said, today is a momentous day for all women, and especially for us as Bahujan women. On 1st January 1848, Savitribai and Mahatma Phule started the first school for girls in India. Savitribai was 18 and Jyotiba was 22. So at such a young age, the couple had the foresight to see the transformation of the mind that education can bring about. Baba Sahib took this vision further by exhorting us to cultivate our minds and free ourselves. Another important aspect is that just as without Jyotiba, there would be no Savitribai. Similarly, without Savitribai, there would be no Jyotiba. She was his equal partner in every sense, socially, morally, and intellectually. Liberty, equality, and fraternity started from their home. She supported his every venture and matched his footsteps. She also had an independent identity as a teacher and a poet and knew the power of the written word. I think for all of us Ambedkarite couples, this is the message that the Phule couple would like us to inculcate. Both you and your partner
need to generate that bond and build a synergy to be able to pay back to our ancestors and our community effectively. Jai Bhim, Namo Buddhaya. Thank you, Dr. Sonika. Back to you. Thank you so much, Dr. Anuradha. It's a very good message also that the couple should also work like that. So it will be very helpful and beneficial for our society also. We have a short video regarding the life of Savitribai Phule. So I would like to share with all our viewers and the doctors here. आवाज नहीं आ रहा है, साउंड इज नॉट वर्किंग. Yeah, let me check it. आवाज नहीं आ रही सर. In Naigaon, Maharashtra in 1831. She belonged to a Shudra caste. In the 19th century lived a woman called Savitri Bai. She is a pioneer for feminists in our country. You might have heard her briefly mentioned in your history textbooks, but do you realize she sparked a revolution of women's education in India? Savitri Bai was born in Naigaon, Maharashtra in 1831. She belonged to a Shudra caste. In 1840, when she was only 10 years old, she was married off to Jyotiba Phule, who was also only 13 years old at that time. From a tender age, Savitribai showed an interest in educating herself, which for a woman, especially from an oppressed caste, was nothing short of revolutionary. Jyotiba assisted her in her effort, teaching her to read and write. Even though education was a product made for and by upper caste men, Savitribai would not let the casteist and sexist system stop her in her pursuit of education. After completing her education, Savitribai began training to be a teacher. In 1847, she passed all her exams and became certified to be a teacher. In 1848, Savitribai and Jyotiba Phule started the first Indian-run school for girls in Bhidewada, Pune,
making Savitri Bai the first Indian woman to become a teacher and headmistress. Of course, the upper castes did not take kindly to a Bahujan woman teaching and educating girls. On her way to school, Savitri Bai would have stones, mud, and cow dung pelted at her. It is said that she would carry 2 saris when she went to school, changing out of the soiled sari once she reached school. चप्पल मंगाई अगर वो आता है तो She would say, as I do the sacred task of teaching my fellow sisters, the stones or cow dung that you throw at me seem like flowers. May God bless you. Due to the outrage at their work, Savitri Bai and Jyotiba Phule were thrown out of their house by Jyotiba's father. Still resolute, they moved and opened another school for adults in Pune for the Dalit Bahujan community at the house of Usman Sheikh and his sister Fatima Sheikh. They taught at the school with Fatima Sheikh, who became the first Muslim woman teacher of India. From a single school with 8 girls in 1848, Savitri Bai was running 3 schools with about 150 girls by 1851. A report in the Pune Observer in 1852 read, "The number of girls in Jyoti Rao's girls' school is 10 times more than the number of boys in government schools. This is because the system for teaching girls is far superior to what is available to boys from the government schools." In 1852, Savitri Bai started a women's rights organization called Mahila Seva Mandal and organized a successful barber strike to protest the practice of shaving widows' heads. Savitri Bai was also a poet and wrote poetry stressing on the need for education and the oppression faced by marginalized castes. In 1863, she started an infanticide prohibition home for pregnant widows to provide them a safe space to give birth without the fear of society. The Phules themselves adopted the son of Kashi Bai, a Brahmin widow. He was named Yashwant Rao and went on to become a doctor. When Jyoti Rao passed away on November 28, 1890, Savitri Bai broke all norms when she lit his funeral pyre. She also took over the running of their social organization, Satya Shodhak Samaj. In 1897, a wave of bubonic plague hit Nalasopura. While taking care of the afflicted, Savitri Bai contracted the disease herself. She succumbed to the disease and died on March 10, 1897. Her legacy has been memorialized in statues, stamps, university names, and in books and films. Women's education in India is indebted to the tireless work of Savitri Bai Phule. Shouldn't January 3rd, her birth anniversary, be celebrated as Teachers' Day? So this video has given a very good question at the end, and that is for what we are here today. So we should celebrate it as a Teachers' Day. It is very important for all of us. So with this, we only will have a discussion with all our doctors and special guests who are present here. I would like to invite Mr. Sandeep Tamgadge sir to please have a few words on this topic and enlighten us. So please. Yeah, thank you, Dr. Sonika ji. I'm thankful to IADF once again for giving me an opportunity to once again yet to be a part of your platform and present my views today, especially on the occasion of birth anniversary of Savitri Bai Phule. As you would have seen the video, short video which was presented, what a marvelous human being, what a marvelous women, and that too almost 200 years back. It wasn't easy. It's not even easy today, even now. And imagine the kind of dedication, the passion, the zeal that Savitri Bai had to ensure that the male-dominated society, the caste-ridden society, the society which prohibited knowledge not only to the untouchables, prohibited knowledge not only to the oppressed, but also women for hundreds and thousands of years. It took just one fearsome warrior
absolutely wonderful women to change the whole dynamics of the society. I think by ensuring that by celebrating 3rd Jan as the birth anniversary for Savitri Mai, we need to take a vow today that we all will ensure that women education will make our priority, will take our priority, especially IIDF being a body of absolutely professional, wonderful Ambedkarite individuals. It's our moral duty to ensure that women education, the child education, the girl childs who are in rural area, the girls who are from humble backgrounds need to be supported, going out of our way and ensure that the education is completed. As you would all have seen, से मराठी में एक कहावत है कि एक जब पुरुष पढ़ाई करते हैं तो वो सिर्फ अपनी अकेले की पढ़ाई होती है, और जब एक महिला पढ़ाई पढ़ती है तो पूरे परिवार की पढ़ाई होती है. And Savitri Mai, as the video had said, not only ensured that the women education takes a center stage, but also ensured that all other vices in the society prevalent during that time, even now, were taken head on. And she took such a courageous stand till her death in 1896. We have so many things to learn from her life, her passion, her zeal, her dedication, her willingness to take on all adversaries despite her personal traumas, personal difficulties. It was due to the persistent efforts of Savitri Mai and Fatima Sheikh Ji, which has resulted in whatever little improvement that we see in women's condition now, even after 200 years. My best wishes to IDF for arranging this webinar today on Savitri Mai's birth anniversary, and would wish to convey my suggestion that IADF as a professional organization may also like to take up certain projects with respect to the girl child education. In my own individual capacity, my trust, Tamgarge Trust, we provide annual scholarship to the orphan girls from the area of Vidarbha who are pursuing their education, because we know even today the girl education takes a backseat, and in an unfortunate event of a girl losing her father or mother, the education definitely in most of the cases is not continued. Maybe on a similar line, IDF may also think of certain projects wherein at your respective areas, wherever you are performing, wherever you are working, you may adopt some girl child's education, and do a wonderful job not only to the girls but to the entire society. Having said this, once again, thank you so much, Dr. Sonika ji and IDF, for giving me an opportunity to be a part of this wonderful program. Thank you once again. Over to you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir. We are highly obliged with your words, and definitely IDF will do work on this stream also in future. We are also planning for that right now. Thank you so much, sir, for coming in today's program. Now we have our team members with us, the IDF members. So I would like to introduce them also, and also will have few words from them. So we have with us our Executive President, Dr. Rajendra Prasad sir, Dr. Muthu Virmani sir, and Dr. Gulshan Prakash sir, Dr. Gulsharan Singh sir. Also we have Dr. Ravi Kumar sir, and we have the members of the YELDAR team with us. So I would like to invite our Executive President, Dr. Rajendra Prasad sir, to please have some words on this. Sir. जय भीम नमो बुद्धाय। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षा एवं स्वावलंबन की जो माता सावित्रीबाई फुले ने अलग जगाई है, उसी का परिणाम हमें आज दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर सोनिका बोधी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आज आईडीएफ की, और
हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर अनुराधा बेले, ही इज ए वेटनरी डॉक्टर, ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज ए मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। तो ये सब कहाँ से निकल के आए? सोचिए, अगर माता सावित्रीबाई फूले नहीं होती अगर हमारे समाज से, तो मुझे नहीं लगता था कि हमारे समाज की महिलाएं वो जो घर की चार दीवारी हैं उससे बाहर निकलने की भी सोच सकती थी। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हमारी सोसाइटी पर आया है उसका सारा क्रेडिट माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। अगर माता सावित्रीबाई फुले शूद्र समाज के ना होकर और कोई दूसरी कम्युनिटी से होती तो मुझे नहीं लगता कि हमारा बहुजन समाज इतनी आज तरक्की कर पाता। हमारे आईडीएफ की एक मेंबर है जो यूएसए में है। तो सोचिए, आज हम वर्ल्ड वाइड हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर जगह पहुंच चुके हैं, हर सब्जेक्ट में हम पहुंच चुके हैं, न केवल साइंस में, एरोनॉटिकल स्पेस में हमारे कुछ महिलाएं कैप्टन्स भी हैं। आज उनका प्रोग्राम भी हुआ है। हमारे एक साथी हैं अनूप कुमार जी, उनके वो प्रोग्राम में गए हम। तो ये सब कहाँ से निकल के आया? ये इसीलिए मैं माता सावित्रीबाई को सत सत प्रणाम करता हूँ। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ बहुजन समाज की महिलाओं से, क्योंकि अगर वो जितना ज्यादा हायर एजुकेशन लेंगी उतना ही ज्यादा हमारे समाज की महिलाओं, स्त्री शिक्षा पर और पूरे परिवार की शिक्षा पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो फैमिली दो फैमिली से मिलकर बनती हैं, क्योंकि वो एक अपने फैमिली को भी एजुकेट करती है, अपने पति की फैमिली को भी एजुकेट करती है। इसीलिए हमें चाहिए कि जितनी महिलाओं को हम हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे उतना ही समाज का विकास होगा। और मैं चाहूंगा कि सभी महिलाएं अपने कैरियर ओरिएंटेड रहें, न केवल भारत में वरन विदेशों में भी जाके शिक्षा लें, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और वहां से जब वो निकलेंगी तो उनकी वर्ल्ड वाइड बात सुनी जाएंगी और इससे हमारा समाज भी लाभान्वित होगा। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सोनिका बोधी को भी धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रोग्राम को हमने माता सावित्रीबाई फुले को डेडिकेट किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने कहा कि सभी फीमेल्स को एजुकेशन जरूरी है और हायर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. So definitely being in IDF, we will also work on that. And thank you so much for your inspiring words. We have with us Gulshan Prakash sir also. So sir, मैं आपसे भी दो शब्द सुनना चाहूंगी इस इवेंट के लिए. गुलशन सर प्लीज. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बड़ा अच्छा लगा कि आज के दिन हम जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, आपको मेरी आवाज सुन रही है सबको? तो सर आप अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो और अच्छा होगा, लोग भी आपको देख पाएंगे. जी जी. अच्छा ठीक है. तो यानी आज बड़ी खुशी है कि हमारे जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो माता सावित्रीबाई फुले पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द अगर देखता हूँ तो इवन जो मेरे साथ डॉक्टर हैं, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, 4-5 डॉक्टर हैं, उनको भी माता सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पता है. आज हमें इस मूवमेंट को अपने से यानी अपनी जो शिक्षा है उसको हमें ना लोगों के बीच में बांटना है. अब जिस तरह मैं जहाँ पर काम करता हूँ मेवात में, यहाँ पर 90 के करीब गांव में मैंने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के बारे में बताया. लोगों को पता ही नहीं था, उनको नहीं. अब क्या है कि हमारे समाज की महिलाएं ये सोचती हैं कि भई ये देवी देवताओं से ही हमारे को शिक्षा मिली है, जबकि हमें शिक्षा तो माता सावित्रीबाई फुले से मिली है. लेकिन वो इसलिए मानती हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि माता सावित्रीबाई फुले कौन है. तो हमें ये चाहिए कि उनके ऊपर चिल्लाने की बजाय हमें उनके बीच में जाके बताना चाहिए कि भाई ये शिक्षा उनको इसकी शिक्षा की ज्योति है जो कहाँ से आई है. जिस तरह आप हमारे लोगों को जो हर चीज यही लगती है कि भाई ये तो उनको ऐसे ही मिल गया, जबकि ऐसा नहीं है. इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं. मैं खुद अपने से लगाऊं कि मैं तो MBBS MD डॉक्टर होने के बावजूद भी मुझे इन चीजों का 2011 में पता लगा है, 2010 में जब मैं मिशन मूवमेंट में आया था. अदरवाइज क्या था कि घर वाले कहते रहते बेटे डॉक्टर बनना है, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आपकी अच्छी सोसाइटी में इज्जत होगी. लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें इन चीजों से नहीं बताया. तो
अब हमें ये चाहिए, जब मेरे को पता लगा, मैं बल्कि जब भी था मैं बोलता था कि मुझे आपसे नाराजगी नहीं है। जब मुझे यानी कि 34-35 साल की उम्र में माता सावित्रीबाई फुले या साहब काशीराम या महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके बारे में पता लगा है, तो तब मैंने सोचा कि मुझे गांव में जाके लोगों को बताना चाहिए। उसका परिणाम ये रहा कि हम 2,500 से 3,000 हरियाणा के गांव में हम खुद गए हैं, लोगों को इसके बारे में बताया है, उनको कहानी के रूप में बताया है। बाद में हमसे पूछते थे कि डॉक्टर साहब, ये सच्चा है कि भाई उसके यानी दीवार के पीछे होकर उन पर गोबर मारते थे? मैं बिल्कुल मारते थे। मैं बोला आज के हिसाब में आज कोई गोबर मार के दिखाए ना हमारी महिलाओं पर। यानी जिस सराउंडिंग में हम लोग बैठे हैं, उस सराउंडिंग में आज हमारी महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार नहीं कर सकते। होता उन पे है जो बताते नहीं है। अगर हमें पता लग जाए कि मेवात में ऐसा हो रहा है, हम भी चले जाएंगे वहां पर। तो आज हम जिस तरह अभी इसी मीटिंग में हम 15-20 के करीब लोग डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब हमें यही चाहिए कि हम धीरे-धीरे करके भाई कोरोना के बाद थोड़ा गाँव-गाँव में जाके हम प्रचार-प्रसार करेंगे, तो बहुत अच्छा वो लगेगा। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग कहते रहते हैं कि भाई जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। ऐसा नहीं है। अगर हम अपने अपने जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ पर हम अगर प्रेशर ग्रुप बना लें, तो हम उस प्रेशर ग्रुप के कारण हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं आज मेरे को बल्कि इस नए साल पे बड़ा अच्छा मौका मिला है। मेरा रोहतक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ा। यानी जो लोग मुझे मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते मेडिकल कॉलेज में, वो उन लोगों को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ा। बड़ा उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब मैंने उनको बोला, मैं जी आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। नहीं तो आप हमें इस कॉलेज में तो क्या, आप हमें रोड पे चलता नहीं देखना चाहते थे। बोले होना। तो हमें, लेकिन ये चीज मैं इसके लिए को मानता हूं, मैं इसके लिए केवल एक ही चीज को मानता हूं कि जो ये हमने बिना रुके, बिना थके जो समाज के बीच में काम किया है, उससे आज हमें ये मौका मिला है कि काम पर ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं कि भाई हम ये इस तरह का मिशन का काम करेंगे, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी या हमारा और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। महापुरुषों के मिशन को पढ़ लिया और उसको दूसरे लोगों को जागृत कर दिया, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मेरा अपना यानी कि एक अपने मिशन का वो है। तो मैं ज्यादा कुछ तो, क्योंकि हम जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, लगभग सभी को यानी कि माता सावित्रीबाई फुले के जीवन जो पहले वीडियो दिखाया उसमें सारा बताया है। तो आज मेरा तो यही है कि हमें गांव-गांव जाकर बिल्कुल प्यार से उनके बीच, हम जब समाज के बीच में जाते हैं, लोग यानी कि हर तरह का चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, जो उनका बनता है वो करते हैं। बस हमें उनके बीच में जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और दोबारा से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने काफी अच्छी बात बताई कि हमें सिर्फ बात करने के अलावा प्रैक्टिकल चीजें भी करनी चाहिए, लोगों को इंस्पायर भी करना चाहिए, उनके बीच जाकर इस चीज को बताना भी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। So thank you so much sir, and in spite of so busy schedule, as we can see you are traveling, but still you have joined our meeting, so we are very thankful to you. Ji, I would like to invite Dr. Muthu Virmani sir, our treasurer, IADF. Sir, please. You able to see me? Yes, sir. Yeah. So Yes, first of all, I would like to congratulate IADF for organizing this Teachers' Day meeting. And as we know that female education is not only for the family as well as for the society, and Baba Sahib has said that progress of the nation also mainly depends upon the education of female child. So on this day, I would like to congratulate, and we also should take some initiatives to educate our children, like especially that people who have not, and make them in progress in their life. Thank you so much.
Thank you so much, sir. Definitely, IDF will do work on this part also. Yeah, I would like to invite Dr. Gusharan sir. He's also with us. So please unmute yourself. Yeah. यस सभी साथियों को जय भीम। और आज सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी पर सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर गुलशन बोल रहे थे, उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमने तो ये सारा कुछ जान लिया, पर हमें अपने जो समाज है उसको भी ये सारी बातें बतानी है। उसके लिए हमें आगे कार्यक्रम करने चाहिए। जैसे कि आज मैंने किया कि मैंने अपने जो मेरा स्टाफ है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपने स्टाफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें मैंने ये मैसेज दिया आज कि जो भारत की पहली महिला टीचर थी, उसका बर्थ एनिवर्सरी है। तो उनको मैंने एक छोटी सी वीडियो भी उनकी भेजी, तो उन्होंने देखी। तो उस वीडियो को देखने के बाद सभी ने वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। दैट मीन्स कि हमें उनको बताना है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे जो ये मेंटर्स थे, हम किनकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, वो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। और हमें भी, जैसे बता रहे थे सभी भी, हमें भी बहुत लेट जाके पता चला इस सारी मूवमेंट का। तो बस वही है, अभी प्रैक्टिकली हमें इस चीज को लोगों के बीच लेके जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे जो असली गुरु हैं वो कौन है। वो जो वैसे हमारे रिलीजियस जो फंक्शन जो आते हैं, त्योहार वगैरह, वो तो सभी को पता है, और जो असली जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका नहीं पता है। तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमें उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सही कहा आपने सर, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, और तो हमें ये जरूरी है कि उन सबको ये चीज बताना चाहिए। प्रोग्राम भी हमने इसी के तहत किया है कि हमारे जो सारे डॉक्टर्स ग्रुप हैं उनको भी पता चले और उनके थ्रू और लोगों को भी ये बात पता चले। तो थैंक यू सो मच सर। Now we'll move on to our program which we have arranged for today. Before that, I would like to give a short introduction about today's group. आज हमारे साथ है यलगार सांस्कृतिक मंच, जो कि मुंबई से है। So it was started in 2015 with the aim of doing community work with constitutional values at its core: freedom, equality, justice, brotherhood, to bring social awakening among the people. They do street plays, public meetings, poetry recitations, songs, plays, and experimenting with videos through social media and organize various programs. They regularly conduct workshops and also work in slums and school with children in Mumbai and promote rationalist ideas through plays and music. So we are very delighted to have you with us today. Also, as we have seen the highlight of your program, so we and especially all the viewers are eagerly waiting for your program. So over to you, Yalgar Sanskritik Manch. माता सावित्री माई कहती है कि ज्ञान ज्योत लगाने से ही अंधकार का विनाश होगा, और अंधकार में ही तो उल्लुओं का जन्म होता है। उल्लुओं को पसंद होता है। हाँ, अंधकार पसंद होता है। और हम देख रहे हैं कि हमारी इस सिस्टम में बहुत लोग ये उल्लू है जो अंधकार को पसंद करते हैं। उन्हें प्रकाशमान होना, बुद्ध ने जो कहा है कि अत्तदीपो भव, ये जो संदेशा बुद्ध ने दिया है वो उनको पसंद नहीं है। तो हमारे देश के जो नेता है, जो पूरा देश चला रहे हैं अब, तो वो भी हमें उल्लू है ऐसा लगता है, क्योंकि वो तो अच्छी राजनीति करने के बजाय वो तो एक साधु संत बनने की कोशिश बन रहे हैं। तो माता सावित्री जी ने अच्छा संत कौन होता है ये बताया है। तो उनकी एक कविता है जिसमें उन्होंने अच्छे संत के बारे में कहा है, तो मैं वो आपके सामने पढ़ती हूँ। जो वाणी से उच्चार करे वैसा ही बर्ताव करे, जो वाणी से उच्चार करे वैसा ही बर्ताव करे, वे ही नर नारी पूजनीय। सुख हो दुख
हो दुख कुछ स्वार्थ नहीं, जो जतन करे अन्यों का हित वे ही ऊंचे। मानवता का रिश्ता जो जानते हैं, मानवता का रिश्ता जो जानते हैं, वे सब सच्चे संत सावित्री कहे। तो जो मानवता का रिश्ता जानते हैं, जो मानवता वाली भूमिका को लेकर आगे जाते हैं, वही सच्चे संत है, ऐसा सावित्री जी ने कहा है। और वही बात संत रविदास जी भी कहते हैं। तो संत रविदास जी की वाणी हम सुनते हैं। जी, इंडियन अम्बेडकराई डॉक्टर्स फेडरेशन की तरफ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी डॉक्टर लोगों को हमारा प्यारा जय भीम, जय साहू, जय ज्योति। तो संत रविदास जी की वाणी हम गाएंगे आपके लिए, और ये वाणी बार बार गानी चाहिए, क्योंकि गोस्वाती ने कहा कि बहुत संत बड़े घूम रहे हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये सिर्फ दाढ़ी फिराए जोगी बन जाए। क्या आपको ही बात सब पता है संत कबीर जी की? तो ये संत रविदास जी की वाणी हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो संत रविदास जी कहते हैं, माथे तिलक हाथ जप माला, जगत ठगने को स्वाग रचाया। अच्छा, ये मार्ग छाड़ी कुमारग डर के, साची प्रीत बिनु राम न पाया। जो खुदा पश्चिम बसे, वो पूरब बसत है ना। उनके राम अलग थे भाई। अच्छा, और आज के जमाने के जो लोग हैं, तो दिल में नफरत लिए घूमते हो, उनके राम अलग है। बिल्कुल। जो खुदा पश्चिम बसे, वो पूरब बसत है ना। रविदास से वो जी ठाकुर हजार बरस भुला चाहे देता रहे हजार बरस भुला चाहे हजार। रविदास खुदा ना मिल सकेगी, रविदास खुदा ना मिल सकेगी। दोनों मन शैतान, दोनों मन शैतान, दोनों मन शैतान। तो आज के जमाने में मतलब 2014 से तो सब कुछ अच्छा ही है। जी जी जरूर है, बिल्कुल सब कुछ। जैसे ये कुछ चुनिंदा लोग सत्ता में आए हैं, वो तो बात ही कर रहे हैं, उन्होंने तो वोट ही इसी बात पे लिए थी, सब कुछ चंगा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और उनके ख्याल से तो अच्छे दिन आ भी गए। बिल्कुल, है ना। तो देखते हैं कि अच्छा है या नहीं सच में। अभी किसानों की जो हालत है, किसानों का जो चल रहा है आंदोलन, तो एक कविता याद आ गई मुझे, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अरे अच्छा तो तब भी था जब यहाँ कोई ऊंच या नीच नहीं था, किसी प्रकार का जातिवाद नहीं था। कहते हैं तब यहाँ राम का राज्य था, कहते हैं तब यहाँ राम का राज्य था। अरे वो तो बस एक शंभुक था जो ढूंढने लगा अपने होने की पहचान। जी हाँ, अपने होने की पहचान। बस एक शंभुक जातिवादी था, बाकी सब कुछ अच्छा है। जी, द्रोण तो हमारे महान गुरु थे, बिल्कुल करते थे शिक्षा का उदात्त कार्य। जी, द्रोण तो हमारे महान गुरु थे, करते थे शिक्षा का उदात्त कार्य। अरे वो तो बस एक एकलव्य था
जो बनना चाहता था क्षत्रिय धनुर्धारी। जी हाँ, क्षत्रिय धनुर्धारी। बस एक एकलव्य जातिवादी था, बाकी सब कुछ अच्छा है। मनु तो हमारे पहले न्याय पंडित थे। बनाई थी हर जाति के लिए सटीक जगह। वो तो बस एक अम्बेडकर थे जो लाना चाहते थे जाति निर्मूलन समाज। बस एक अम्बेडकर जातिवादी थे, बाकी सब कुछ अच्छा है। अरे ईश्वर तो हर किसी के सुख दुख का ख्याल रखते हैं भाई। ईश्वर तो हर किसी के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। वो तो बस एक तुकाराम थे जो पूछ बैठे उस ईश्वर से सवाल, अगर तू एक है तो हम क्यों नहीं। बस एक तुकाराम जातिवादी थे, बाकी सब कुछ अच्छा है। अरे अच्छा तो कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। अच्छा तो कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। वो तो बस एक रोहित था, चौड़ बैठा अपने जिद पर और पूछने लगा उन मनुवादियों से सवाल। बस एक रोहित जातिवादी था, बाकी सब कुछ अच्छा है। बस एक रोहित जातिवादी था, बाकी सब कुछ अच्छा है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है। कैसा ये धर्म है, 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 कैसा ये धर्म है। हर गाँव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गाँव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है।
इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये शीतल साठी जी ने लिखा हुआ ये गाना है। सचिन मारी ने लिखा हुआ गीत है और शीतल साठे हमारे दोस्त का बहुत अच्छे गाते हैं ये गीत। तो दोस्तों बात यही है कि आज हम काय खरा शिक्षक दिन मराठी में हम बोलते हैं कि सच्चा शिक्षक दिन हम मना रहे हैं, टीचर्स डे मना रहे हैं। यहाँ के महाराष्ट्र के सरकार ने भी खुद को पुरोगामी कहते हैं, उन्होंने भी महिला शिक्षक दिवस, महिला शिक्षक मतलब पेट्रार्कल नजर से, पितृसत्ताक मानसिकता से उन्होंने देखकर उनको शायद उनकी नासमझी हो या फिर जानबूझकर भी कर रहे होंगे, जानबूझकर भी वो कर रहे होंगे कि महिला शिक्षक दिन मतलब सावित्रीबाई सिर्फ महिलाओं की शिक्षक दिवस मनाया जाएगी, ये उनका थोड़ा सा महिला मुक्ति दिन ऐसा भी मनाया जा रहा है। हाँ, तो हमने पहले से यही मांग अम्बेडकराइट मूवमेंट में यही रही है कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाला शिक्षक दिन झूठ है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है शिक्षक नाम से। तो ये सच्चा शिक्षक दिन ये 3 जनवरी है, सावित्रीबाई की जयंती यही है और ये हम मना रहे हैं, अपना फेडरेशन भी आप भी मना रहे हो। तो फिर से एक बार हम जाग मुसाफिर ये गीत पेश करेंगे। हम यलगार सांस्कृतिक मंच ने उसको कंपोज किया हुआ है, कुछ क्रांति इनकलाबी कवियों की कविता है और संत कबीर जी के दोहे हैं। बिल्कुल ये मुसाफिर वो है जो एक धर्म का झंडा उठाए हुए है, जो इस संविधान जिस देश में चलता है, जो लोकतांत्रिक देश है, जिस देश का संविधान है, उस संविधान को ना समझते हुए, ना मानते हुए वो अपना धर्म का झंडा उठाकर उस अंधेरे कुएं में जा रहा है। वो क्योंकि उल्लू है, जो हमने बताया, क्योंकि हमारे मराठी में बहुत अच्छा सावित्रीबाई ने लिखा है घुबड़ इच्छा, घुबड़ बोलते आदमी समझ लो, घुबड़ ये बहुत अच्छा शब्द लगता है। उल्लू तो लगता है कि उल्लू मतलब उल्लू पागल, लेकिन घुबड़ इच्छा बहुत खतरनाक है और वो कि अंधेरे के पुजारी है, उनको अंधेरा चाहिए। ये लोग, उन लोगों का हम बोले कि जागो भाई, ये अंधेरे में मत जाओ, उजाला की तरफ चलो, प्यार की तरफ चलो, संविधान की तरफ चलो। इसलिए ये जाग मुसाफिर ये गीत आपके अब जाग मुसाफिर, अब जाग रे, अब जाग बंधो, अब जाग रे, इस घनी रैन से अब जाग रे। मैं किसान हूँ, आसमान में धान हो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ कि पगले अगर जमीन पे भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक ही होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या फिर आसमान में धान जमेगा। साधो जागे, बंधो जागे, साधो जागे, बंधो जागे। हिंदू कहते हैं राम हमारा, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान
अब जाग रे साधो साधो जाग रे बंधो जाग रे साधो जाग रे बंधो जाग रे। वे डरते हैं, वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद और पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं। लेकिन गरीब और निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। साधो जाग रे बंधो जाग रे साधो जाग रे बंधो जाग रे। जाति न पूछो साधु जी जाति न पूछो साधु जी पूछ लीजिए जा। मौत करो तलवार का मौत करो तलवार का बड़ा रहने दो ना बड़ा रहने दो ना। अब जान साथी अब जान रे अब जान बंधो अब जान रे इस घड़ी रैन से अब जान रे इस घड़ी रैन से अब जान रे साधो जाग रे बंधो जाग रे साधो जाग रे बंधो जाग रे। इंसान जब मरता है तो कुछ नहीं सोचता, इंसान जब मरता है तो कुछ नहीं बोलता। कुछ ना सोचने पर और कुछ ना बोलने पर इंसान मर जाता है। साधो जाग रे बंधो जाग रे साधो जाग रे बंधो जाग रे। बड़े सो पंडित हुए आइया घर से मगे बड़े सो पंडित हुए कबीरा बड़े सो पंडित हुए। साधो जाग रे बंधो जाग रे। दोस्तों हम बाबा साहब ने दिए हुए मेहनत करके इस देश को संविधान दिया है। बुद्ध की परंपरा बुद्ध के मूल्य उस संविधान में दिए हैं। इस देश को इस दुनिया को आगे लेकर जाने वाले मूल्य है। तो इस संविधान के मूल्य में बंधुता ये मूल्य है, समता न्याय बंधुता इन सब मूल्यों को हम मानते हैं और इस मूल्यों को हम संत परंपरा में ढूंढते हैं। ये असली संत परंपरा है जो संत रविदास जी की संत परंपरा है, कबीर जी की परंपरा है, तुकाराम जी की परंपरा है। वक्त कम है इसलिए हम काफी बाकी संतों के गीत नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मिलते रहेंगे, गाते रहेंगे। आगे का गीत स्वाति। जी हाँ, ये जो गाना गाया साधो जाग रे बंधो जाग रे, उसी तरह से सावित्री जी भी कहती है कि अब ये शूद्रातिशूद्र महार अब जाग गए हैं और वो अपने अधिकार को पहचानने लगे हैं। तो कविता ये एक लिखी है सावित्री जी ने, वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। सच कहा है तुमने छठा अंधकार, सच कहा है तुमने छठा अंधकार, शूद्रादि महार जाग गए। वाह। दीन दलित अज्ञानी रहकर दुख सहे, दीन दलित अज्ञानी रहकर दुख सहे, पशु भांति जिए यह उल्लुओं की है इच्छा। मुर्गा टोकरी से ढका रखने पर भी देता है बांग। मुर्गा ढका होता है तभी वो सुबह सुबह बांग देना कभी भूलता नहीं। मुर्गा टोकरी से ढका रखने पर भी देता है बांग और जनता को बताने सुबह होने की बात, जनता को बताने सुबह होने की बात। वाह।
दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खदारा जा रहा है, फिर कथाओं को खदारा जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खदारा जा रहा है, फिर कथाओं को खदारा जा रहा है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। ज्ञान के बिना सब हो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दमितों और त्याग किए गए हुए, दमितों और त्याग दिए गए दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का नया अवसर है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। ब्राह्मण के ग्रंथ, इन ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। इन ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। कुंड से चेहरा निकलता दिख रहा है, कुंड से चेहरा निकलता दिख रहा है। लोग अवतार लेकर नहीं आएंगे, हम अवतार को नहीं मानते हैं। बुद्ध, बाबा साहब, सावित्री माई हमारे कार्य से आएंगे। ये हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी दोस्त, अल्पसंख्यक, लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित, बहुजन, आदिवासी, यहाँ के हर दबे कुचला एक न्याय के हक की लड़ाई लड़ेगा। और वही सावित्री माई है, वही बाबा साहब है। ये हम नया सपना देखकर गाना गा रहे हैं। कुंड से चेहरा निकलता दिख रहा है, कुंड से चेहरा निकलता दिख रहा है। कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। पिया है सुबह बनकर फूटने को, पिया है सुबह बनकर फूटने को। दिल में गुस्सा उबाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खदारा जा रहा है, फिर कथाओं को खदारा जा रहा है। स्थगित है गति और समय का रथ रुका है, स्थगित है गति और समय का रथ रुका है। कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी, प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी। ये प्रश्न पूछने का ताकत सावित्री माई ने हमें दिया। ये प्रश्न पूछने का ताकत मुक्ता साल्वे को सावित्री माई के स्कूल में मिला। और वो इन धर्मांध ब्राह्मणों को, पंडितों को सवाल किया, हमारा महारों का धर्म कौन सा है? ये धर्म अगर हमें पशु जैसा बर्ताव करता है तो हमारा धर्म कौन सा है?
ये मुक्ता सालवे ने सवाल पूछा था यहाँ के मनुवादी सिस्टम को, और वो ताकत, वो बल सावित्री माई के ज्ञान ने दिया था। सावित्री माई ने हमारे दिलों में, रगों में ये ज्ञान की ताकत, क्योंकि सावित्री माई बोलती थी आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो है अज्ञान। और अज्ञान में रखने की कौन, किसकी साजिश है, तो इन मनुवादियों की, ब्राह्मणों की, पंडितों की। ये सभी बहुजनों को हमारा कहना है कि भाइयों बहनों कि अज्ञान से जागते हैं। अभी भी हम पंचांग प्रणाम देखकर, ये राशि भविष्य देखकर ही सब काम कर रहे हैं। ये हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी संसद बना रहे हैं, लेकिन क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन उधर पूजा गलत जगह पे आए, गलत उनका जगह फेस देख के ऐसा लगता है उनको अलग जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन वो गलत जगह पे आए। जी गलत जगह। वो क्या हो रहा है, बगुला भगत बने जनता में, वो तो नकली भेष को इस कौमवाद ने घेर लिया है अपने प्यारे देश को। इससे दोस्तों कह रहे हैं प्रश्न का उत्तर कठिन है, इसलिए भी प्रश्न का उत्तर कठिन है, इसलिए भी प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। दिल का भाव को भगाया जा रहा है, दिल का भाव को भगाया जा रहा है, ओ जा रहा है, ओ जा रहा है। उजाला आ रहा है। तो साथियों, हम उजाले के पाइक है। पाइक आपको पता नहीं, मैं हम लोग मराठी गाते हैं, ज्यादा मराठी बोलते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा हिंदी में परफॉर्म करने में। लेकिन उजाला के हम साथी हैं, हम उजाला चाहते हैं क्योंकि हम बुद्धों को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, और इस देश में प्यार, अमन, मोहब्बत और संविधान की संस्कृति एक इसमें शाबित, यहाँ मजबूत बनने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। यलगार सांस्कृतिक मंच मुंबई की तरफ से आज आपके लिए पेशकश थी। शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में निमंत्रित करने के लिए। दोस्ती जिंदाबाद, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया मैं सभी आयोजकों को, यलगार सांस्कृतिक मंच की तरफ से मैं धम्म रक्षित और मेरे साथी प्रवीण, हम साथ में है अभी। तो हम सबको जय भीम, जय सावित्री, जय ज्योति कहते हैं। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 मिनट में हम बात करेंगे कि हम यलगार सांस्कृतिक मंच मुंबई के कलाकार महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से मुंबई में पढ़ने के लिए आए। हमने नाट्य शास्त्र में हमने पढ़ाई हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी से की, एमए थिएटर आर्ट्स किया है, किसी ने लोक संगीत में डिग्री की है, क्लासिकल म्यूजिक में डिग्री की है, और मोस्टली थिएटर आर्टिस्ट है जो फुल टाइम हम पैशनेटली हम सोचते हैं कि हमें एक अम्बेडकरवादी संस्कृति हो, संविधानों की मूल्यों की संस्कृति बनाने के लिए हम कलाकारों को डिवोटेड काम करना है। इसलिए हम हमारे इंट्रोडक्शन भी सोनिका जी ने पढ़ाई, उसमें भी आपने जाना होगा। तो बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर आप सब हैं, और डॉक्टर होकर भी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोगों को जागृत करते हैं, और आपका महत्व बहुत है। तो हम कलाकार भी तैयार हैं इस आंदोलन में पूरा वक्त और दिलो जान से काम करने के लिए। आपका मार्गदर्शन और आपका सपोर्ट भी हमें काफी लगेगा इस काम में। तो शायद बिल्कुल जल्दी ही मिले और कुछ साथ में अभियान चलाए सोशल मीडिया को लेकर, क्योंकि थोड़ा इक्विपमेंट, रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, इसलिए हम ज्यादा अच्छा कंटेंट, ज्यादा अच्छे वीडियोस या लाइव परफॉर्मेंसेस बनाने में थोड़ा दिक्कत आते हैं। तो वी कैन वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट टुगेदर, और अच्छा कंटेंट, अच्छा म्यूजिक, अच्छा शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। और अपना ये शाहू फुले अम्बेडकर का विचार, ये मानव मुक्ति का विचार, ये सभी धर्म के लिए है, सभी इस देश में हर रहने वाले हर नागरिक के लिए ये विचार है, वो पहुंचाने का एक जिम्मेदारी लेकर हम काम करेंगे, और आपका सहायता मिलेगी, इतना उम्मीद करके हम यहाँ रुकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस था, हर लाइन में एक मैसेज है, एक मीनिंग है। So thank you so much. It is short duration में you people have arranged this performance. We are very very highly obliged to you. Rajendra sir, would you like to say something? यलगार सांस्कृतिक ग्रुप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये परफॉर्म करके दिखाया, और साथ में आपने ये भी बताया कि आप लोग आर्टिस्ट हैं, आपने एमए किया है, किसी ने लोक संगीत में किया है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे समाज के लोगों को आपने प्रोवाइड कराई है कि हम लोग है ना
म्यूजिक, ड्रामा और सिंगिंग, इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है, हम भी चाहेंगे कि आप दिन ब दिन अपनी ख्याति देश से निकल करके विदेश तक भी पहुंचे और अम्बेडकर शाहू फुले कारवां को आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषी जी और आपकी पूरी टीम का। सोनिका, मुझे लगता है कोई अपने साथी और हैं, तो एक बार उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। जी सर। कोई है? कोई बात। निकेतन एंड मनीष सर, ये आपके टीम के हैं शायद। Okay, sir. Then wind up. We'll wind up. Thank you so much, all of you. Before ending, I'll just read a poem which has been written by for Savitribai Phule. O Mother Savitribai, the lamp of education that you lighted so many years earlier is enlightening millions of your daughters today. For the respect of today's women, you sacrificed all your life, facing abuse, even dirt thrown on you, even risking your life, but you never let your ambitions turn impure by the filth of this chauvinist society. Today, every woman of India is indebted to you by your sacrifice. The modern Indian women salutes you and continues taking inspiration. So with this, I think we waited, she educated, we stated, she acted, we hated, she neglected, we debated, she created, we discriminated, she related. So this is a very wonderful message for all of you. Lastly, I would like to thank each and every member of IIDF team. Special thanks to Mr. Sandeep Tamgadge sir for joining us today, and a very special thanks to all the YELGAR team members for the wonderful and marvelous performance for today's event. With this, we come to an end to this event. Thank you so much.